welcome to the class of UGC NET Paper 2 Subject Commerce. And today it's going to be the last topic of Unit 1. Unit 1 बच्चे इस topic के साथ आपका पूरा complete हो जाएगा and then we will move to the Unit 2 of Paper 2. Okay, Unit 2 of Subject Commerce is again going to be very important, so don't skip any session. And along with Unit 2, you are going to get a very new surprise in the last of this session. Till then, let's start and complete this topic of World Trade Agreement, that is Trade Related Investment Measures, जिसको हम क्या बोलते हैं, TRIMS भी. Okay, as we did in last session, TRIPS, that were trade related intellectual property rights. Today it is investment measures, that are TRIMS, trade related investment measures. So bache, this is also one of the important agreement under World Trade Organization. And what it says, so first of all जो TRIMS है बच्चे, एज यू कैन सी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इसमें डिसीजंस थे, और इन्वेस्टमेंट है इसका मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है, दैट इज रिलेटेड टू द foreign investment. Okay, all the foreign people or the foreign investors were covered under this agreement. So TRIMS are the rules that are applied to foreign investors. First point बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स, वाई, बिकॉज जितने भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स थे बच्चे, उन्होंने आपस में मिलकर ये एग्रीमेंट किया था कि हमें कुछ सर्टेन रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल्स बनाने की जरूरत है जो कि इन्वेस्टर्स के लिए होंगे. इन्वेस्टर्स को एक फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत है, वो बैरियर्स हटाने की जरूरत है. So TRIMS are the rules that are applied to the foreign investors, means foreign investors find the easiest way to do investment in the foreign countries. Next, this agreement was applied by all the members of WTO. जितने भी WTO के members रहे हैं उन सब पर ये agreement automatically apply होता है. Then this agreement came into force बच्चे. Again I told you this year is going to be very important from related to this foreign agreement. So 1995 बिल्कुल आपको याद रखना है टिप्स पे. Then is policies. अंडर ट्रिप्स हमने क्या पॉलिसीज ली थी, जो पॉलिसीज ऑलरेडी थी किस चीज की, एक पॉलिसी थी आपकी की कंटेंट रिक्वायरमेंट, एंड सेकंड वाज द ट्रेड बैलेंसिंग. Okay, two policies that were related to this content requirement and trade balancing जो rules थे that were traditionally used होते थे बच्चे, now they are completely banned. ट्रिप्स के आने के बाद ये जो पॉलिसीज है कंटेंट रिक्वायरमेंट की और ट्रेड बैलेंसिंग की, ये कंप्लीटली क्या हो चुकी है, बैन हो चुकी है. दिस ट्रिम्स रूल्स, ये जो ट्रिम्स के रूल्स हैं, दैट रूल्स ये कहां पर अप्लाई होते हैं, दैट रेस्ट्रिक्ट what preference of domestic firms and thereby they enable the international firms. जो international firms हैं एक तरीके से उनके लिए they operate more easily in foreign markets, ताकि जो international firms, international investors, those who want to invest their money in foreign markets, these trims जो थे बच्चे, they came as a booster, they came as a way to provide them the right track to do the investment, and they are done by restricting the preferences of domestic investors. Means domestic investors के ऊपर एक तरीके से चेक आउट करना भी ट्रिम्स के अंडर था, क्योंकि डोमेस्टिक फर्म्स जो थी वो ये चाहती थी कि इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिकली ही हो, एंड इंटरनेशनल फर्म्स जो हैं उनको वो ट्रैक नहीं मिल रहा था. They were not finding the right way through which they can do investment, and TRIMS came as a booster for them to provide the right track. राइट, सो अब हमें ट्रिम्स के बारे में आपको एक नॉलेज हो गई. ट्रिम्स क्या है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, मींस फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक राह दिखाई गई कि आप किस ट्रैक के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आपको फ्रीली एक इन्वायरमेंट दिया गया है, कोई भी बैन आप पर नहीं होगा. तो इससे रिलेटेड फीचर्स आइए हम रीड करते हैं. फर्स्ट इज abolition of restrictions that were imposed on the foreign capital.
जो फॉरेन कैपिटल होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी, फॉरेन मनी जो आपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू दूसरे बाहर के इंटरनेशनल लोगों से मंगवानी है, उसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन जो थी वो कंप्लीट क्या हो गई थी, एबॉलिश हो गई थी, खत्म हो गई थी। ओके, मींस इसका मतलब कि जो फॉरेन कैपिटल थी वो इजीली अब फ्री फ्लो होगी थ्रू द बॉर्डर्स, एंड यस फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन एनी कंट्रीज फर्म. Then next feature of TRIMS was this was offering equal rights to investors. Equal rights का मतलब था बच्चे कि कोई भी फेवर या डिसफेवर नहीं होगा among whom, among domestic and international या foreign इन्वेस्टर्स के बीच में. दे वर ट्रीटेड एज वन, इनको बिल्कुल एक कैटेगरी में माना गया, तभी इनके क्या थे, इक्वल राइट्स थे. ओके, सो दे वर गिवन द इक्वल राइट्स. देन नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एनी एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट. जैसे एज आई टोल्ड यू हेयर दैट कंटेंट रिक्वायरमेंट पहले एक आपकी रिक्वायरमेंट थी, ट्रेड बैलेंसिंग के थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट करनी थी, बट अब एज सच कोई भी एरिया नहीं है कि जो आपको रेस्ट्रिक्ट या बाउंड करता है इन्वेस्टमेंट के लिए. जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है दे कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन एनी एरिया अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस. Okay, and the next feature is there was no limitation on the क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. पहले क्या था बच्चे कि जो गवर्नमेंट्स होती थी वो एक बार डिसाइड कर देती थी, क्वांटम डिसाइड कर देती थी या क्वांटिटी डिसाइड कर देती थी कि इस अमाउंट से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी या फॉरेन कैपिटल आप नहीं ले सकते. सपोज कीजिए कि एक इंडस्ट्री है या एक फर्म है, बिजनेसमैन है, और उसको सपोज 25 करोड़ की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें बार लगा दिया गया कि आप 3 या 4 करोड़ से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं लोगे. 4 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर आपने ली तो आपकी जो कैपिटल है उसको क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा. सो ये जो क्वांटम था ये कंप्लीटली एबॉलिश हो गया था, या लिमिटेशन जो थी वो बिल्कुल भी नहीं लगाई गई. इट वाज फ्रीली इन्वायरमेंट इन विच यू कैन इन्वेस्ट एनी अमाउंट ऑफ मनी. सो ट्रिम्स जो था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसके थ्रू फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक रिलीफ मिला. दे कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन एनी कंट्री दे वांट. Now students, this is your, as I said, the last topic of unit 1, and along with this unit 1 is completed of your this subject commerce, right? And now the next syllabus now onwards जो भी आपके unit 2 से लेकर unit 10 तक, means total 9 units जो remaining है, ध्यान से सुन लीजिए, 9 units that we are going to cover in another channel of the same series. The next channel that you will find of this UGC net is Crack Net with Nishman. Okay, I will provide this channel's name in the description, and also you can see on this eye caption. So the name is, I'm writing here also, it's Crack Net with Nishman. Go and subscribe this channel, and in this you are all going to find a very new informational videos, all the upcoming notifications. You are all going to find a lot of information about UGC नेट एग्जामिनेशन. सब्जेक्ट कॉमर्स से रिलेटेड आपको सारी नोटिफिकेशंस, सारे प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट, और इससे रिलेटेड जो भी सिलेबस के आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज जो अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं और आने के जितने भी चांसेस है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेगी. एंड दिस चैनल इज कंप्लीटली ऑफ net preparation subject commerce. So go and subscribe it fast. You again, I'm saying the name is provided in the description and also in the I link. Till then, have a good day. Thank you.